So now today we are going to continue with the planning. So as we have already studied last time about the planning, we have started and we have finished half of the chapter, and we have seen different planning algorithms, okay, problems, and what's the planning agents. What is the difference between the goal-based or you can say problem-solving agent and planning agent? What is the difference between both? How do we write? Okay, all that things we have seen. Okay, and now we are going to move to the next. Okay, there are so many things which are left that we are going to cover. Today we are going to cover all those aspects. Okay, so we have seen how to write the action schema, right? Already we have seen these things. How to write the action schema. We have already seen this. Now the next thing that we are required to understand is about the this is the one more example they have given, okay, about this Swift world model. Okay, uh, now here what they have given. Now as I told you earlier, how do we write these action schemas and how do we read these action schemas, right? First of all, we read the first parameter and then the name of the method and then the second parameter. So in this case, as you can see, this is in room x comma r, where x is a movable object and r is a room. Okay, so here how do we, this is the action schema, right? This is the precondition, or you can say whatever action, whatever it is. So now how do we read this particular this whatever it is written, how do we read this? So we will read it in this manner. First we will read the first parameter which is passed inside this particular function or whatever it is, that is x, and then we are going to read the function name, that is in room, that means whatever action is there. Okay, and then we are going to read the second parameter. Okay, so it will be uh, read like this: x in x is in room r. Okay, so you have to just frame a sentence with the help of this action schema. So x is in room r, where x is a movable object. That means x can move from one room to another room. Okay, next is next to. So here it is, we will read it like this: x is next to t, means x next के x t के next में, मतलब t जो है उसके next जो है next में x, ठीक है, के बाजू में बोल सकते हैं, next में. Then status d comma s, where d is a door and s means open or closed. That means here means d जो है door है, हम उसका status define कर रहे हैं यहाँ पे, door open है या closed है. So the status of d is s. Okay, that is open or closed. So you understand, you have logic, so you can read it that way. और you can say ऐसा नहीं हो सकता है, first we will write, जैसे मैंने बताया first parameter आप पहले पढ़ते हैं, then the method name, function name, then the second parameter. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते status of the is s, but we will say the door's status is, the door's status d is s. Okay, this is the way, and connects another method. And here as we can see we are having three parameters. So again ये भी हम इसको कैसे पढ़ेंगे? D is our door over here, Rx and Ry are the two different rooms. That means D is connecting these two rooms. Okay, so how we will read this? D connects room X and room Y. Okay, this is how you will read this statement. Now the next is word. Okay, this is not. But now shaky strips word के बारे में थोड़ा discuss करेंगे, as we have already discussed in the last video. Our last video in that we have already discussed about this shaky robot. Okay, and that problem, that shaky key wala problem. That what the shaky has to do, it has to collect the boxes which are actually placed at different places, or you can say in the different rooms. Okay, and the keys of that rooms are present, okay, in different rooms itself. And what the shaky has to do there, and there was some precondition that there are certain doors which are not locked, okay, which are just closed, which can be opened, okay, manually with that, with the help of with the shaky. Okay, and there are some doors which are locked. For that, the shaky requires a key. Shaky requires a key through which it can make it. It can unlock the door and it can
go to the next room, okay, and the room in which the boxes are present, only in that room the shaky will go, and shaky will try to find the least, or you can say minimum path, okay, or you can shortest path, okay. So that we have seen. Now here types of actions schema की अगर हम बात करें शेकी में, so what actions शेकी can do, अगर हम लोग लॉजिकली बात करें शेकी क्या कर सकती है, अगर रोबोट की हम बात करें शेकी what शेकी can do, shaky can move first of all because it has to go from one room to another room. That means one action that it can perform is movable. Move, okay. So that's why we have written first action that it can perform is move from place to place. So go to door, okay. Go to door. It is the again a function that we have written with action schema लिखा है. See, ये जो है हम लोग अब the word or the function name which we are giving that is very pertinent to our real world, okay. Why? Because that time only you will understand. अगर हम उसका नाम कुछ भी दे देंगे अगर जो कि आपके समझ के परे, that's why always you have seen जो हम लोग प्रोग्रामिंग में जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो भी फंक्शंस लिखते हैं, मेथड्स लिखते हैं और वेरिएबल इवन डिफाइन करते हो, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होते हैं, ओके, एज योर रियल वर्ल्ड. अगर हम बोल रहे प्रिंट मतलब कि प्रिंट करो कुछ, और सच में प्रिंट का मतलब होता है कुछ चीजें डिस्प्ले करना. प्रिंट का मतलब सिर्फ पेपर और प्रिंट नहीं होता, बट टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन इज ऑल्सो प्रिंट. तो हम जानते हैं वही नाम देते हैं जानबूझ के, ओके, ताकि अभी इससे हम लोग को प्रोग्रामिंग में समझ रहे हैं कि प्रिंट का मतलब ऐसे होता है, रियल वर्ल्ड में वही मतलब होता है. ऐसे कई कंसेप्ट हैं जो कि रियल वर्ल्ड में एंड प्रोग्रामिंग में सेम नेम हमने दिया है जानबूझ के, रिलेटेबल नेम, पर्टिनेंट नेम, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस. दैट्स व्हाई यहाँ पे नेम जो ऐसे दिए गए. ओके, गो टू डोर्स मतलब कि पहला एक्शन जो शेकी कर सकती है दैट इट कैन गो थ्रू द डोर्स, ओके, सॉरी गो टू द डोर, ओके, डोर तक जा सकती है पहला एक्शन, ओके. डोर के आर पार जा सकती है वो तो दूसरी बात है, बट पहली बात है कि वो अपनी प्लेस से डोर तक पहुंच सकती है. ट्राई टू recollect that diagram which I showed on that day. I'll just show again. Yes, see, ये शेकी है, ठीक है, ये शेकी है, ये सी माई एरो, दिस इज शेकी, एंड ये जो है डोर्स है different. तो डोर तक पहला एक्शन है शेकी का जाने का, डोर तक, एंड देन सेकंड एक्शन जो है वो डोर के आर पार. So that I'll tell you. Yes. So that's why it is written go to. So उसमें प्री कंडीशंस क्या क्या होंगी. अभी यहाँ पे एक्शन क्या होगा कि जो सपोज शेकी एस यहाँ पे उन्होंने लिया है एज अ वेरिएबल एस, यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल आल्सो, बट अगेन एज आई टोल्ड यू रिलेटेबल थोड़ा होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए. अभी शेकी का एस से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई दे हैव टेकन एस comma dx. That means shaky goes to door x. मतलब एक डोर है जिसका नाम x है, उन्हें ऐसा डिजाइन किया है, तो वो शेकी जो है वो कहाँ जा सकती है, x तक. तो हमने इसको ऐसे रीड किया. पहले हम लोग को क्या रीड करना है, फर्स्ट पैरामीटर, देन हम लोग को फंक्शन नेम रीड करना है. यही रूल फॉलो करना है थ्रू आउट दिस चैप्टर. जब भी एक्शन स्कीम हम कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें जो ऐसे कंडीशंस लिखे होते हैं, प्री कंडीशंस या फिर वॉट एवर, तो हमें ऐसे ही पढ़ना है. पहले क्या करना है, फर्स्ट पैरामीटर पढ़ने का जो भी दिया है उसमें, फिर हम लोग को फंक्शन नेम पढ़ना है, एंड देन सेकंड पैरामीटर, एंड थोड़ा उसको इंग्लिश सेंटेंस में हमें फ्रेम करना है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को. अब ये स्टेटमेंट जो है ये इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में, लेकिन ये इंग्लिश सेंटेंस में नहीं, तो वी आर फ्रेमिंग इट इनटू अ सेंटेंस. दैट मींस एज शेकी गोज टू डोर एक्स, ओके. तो प्री कंडीशन क्या है इसके लिए, डोर पे जाने के लिए उसको, ओके. दैट मीन्स शेकी पहले रूम में थी, मतलब है वो रूम में, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, और रूम में है ना शेकी, पहले उसको डोर तक जाना है. तो प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन पहले की, उसके पहले मतलब ये एक्शन करने के पहले की कंडीशन क्या है, और इफेक्ट्स मतलब उस जो प्री कंडीशन है उसका, सॉरी, प्री कंडीशन मतलब क्या होता है कि जो एक्शन हमने करने वाले हैं उसके पहले की कंडीशन, और इफेक्ट्स मतलब जो एक्शन किया हमने उसके बाद का. सपोज अगर मान लो मेरे प्लेट में फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है, सपोज एप्पल रखा है, ओके, काट के, एंड सपोज अभी मैंने खाया नहीं उसको, तो प्री कंडीशन क्या है, दैट एप्पल इज इन द प्लेट, प्लेट में एप्पल प्रेजेंट है. मेरा एक्शन क्या होगा यहाँ पे, खाना उसको, ईटिंग ईटिंग द एप्पल. दैट विल बी माई एक्शन. नाउ
हाउ विल आई डू दिस? ऑफ कोर्स ये मेरा एक्शन है तो मैंने खा लिया। इफेक्ट क्या होगा? प्लेट एम्प्टी, खाली हो जाएगा प्लेट, दैट विल बी माई इफेक्ट, राइट? मेरा पेट भर जाएगा एंड प्लेट खाली हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताएगी। प्री कंडीशन मतलब एक्शन परफॉर्म करने से पहले वाली कंडीशन। इफेक्ट मतलब उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट क्या आया, मतलब हुआ क्या, आउटपुट क्या है, दैट विल बी योर इफेक्ट। ओके, सो प्री कंडीशन क्या है? अगर मान लो अगर एक्शन परफॉर्म करना है शेकी को एक पोजीशन से डोर तक जाना है, तो वो रूम में है पहली बात, दैट इज द प्री कंडीशन। एंड कनेक्ट डीएक्स आर के आर एम, अभी यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर उसको डोर तक जाना है अगर, तो वो डोर दूसरे रूम, ऑफ कोर्स अगर एक रूम से दूसरे रूम में मैं जा रहा हूँ और डोर है बीच में, दैट मीन्स ये रूम और वो रूम के बीच में एक फासला है जो कि है डोर, और वो डोर अगर मैंने क्रॉस कर लिया तो मैं उस रूम में पहुंच जाऊंगा। मतलब ये रूम से उस रूम तक मुझे कनेक्ट कौन कर रहा है, मुझे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? डोर। एनालाइज करने की कोशिश करो, अगर आपके घर में दो रूम है, ठीक है, दोनों रूम जुड़े हैं एक दूसरे से, बस फर्क क्या है कि गेट लगा है बीच में, वो गेट ही है, वो गेट मीन्स दैट डोर। ओके, वो डोर ही है जो आपके दोनों रूम को डिफरेंशिएट करता है। अगर आपको इस रूम से उस रूम पे जाना है तो आपको डोर खोल के ही जाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स दिस डोर इज कनेक्टिंग यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूम टू दैट पर्टिकुलर। तो जिस रूम में शेकी है अभी वो है आर के, दैट इज के रूम, ऐसा एज्यूम किया। और जो दूसरा डोर है, सॉरी जो दूसरा रूम है वो है आर एन। तो बेसिकली यहाँ पे प्री कंडीशन क्या है कि जो हमारा डोर एक्स जहाँ पे जा रही है ये शेकी, वो क्या है? कनेक्ट दैट। तो हम उसको रीड कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, पहले पहला पैरामीटर, फिर फंक्शन, फिर दूसरा पैरामीटर, या फिर बाकी के सारे पैरामीटर बाद में पढ़ते हैं। पहला हमेशा फर्स्ट पैरामीटर पढ़ते हैं, फिर फंक्शन पढ़ते हैं, फिर बाकी के पैरामीटर। सो वी विल फ्रेम दिस इनटू इंग्लिश सेंटेंस, dx, that means door x connects room k to the room m. Okay, door x connects room k to the room m. Okay, room k को room m से कनेक्ट करता है door x। These are the preconditions. बीच में एंड ऑपरेटर डाला है, मतलब कि दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी हम लोग एक्शन कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, प्लेट में अगर एप्पल है देन ओनली आई कैन ईट द एप्पल, अदरवाइज आई कैन नॉट ईट द एप्पल। तो उसके लिए एप्पल होना चाहिए, खाली प्लेट नहीं खाऊंगा मैं, ऑफ कोर्स, राइट? खाली प्लेट में तो कुछ होने वाला है क्या? एक्शन क्या करूंगा? एक्शन नहीं, एक्शन तो तब होगा जब कुछ रहेगा उसके अंदर, राइट? तो उसके लिए प्री कंडीशन होना चाहिए कि प्लेट में समथिंग हैज टू बी देयर, फ्रूट्स व्हाटएवर आई लाइक, आई लाइक टू ईट। देन अभी ये हो गया प्री कंडीशन, अभी एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, मूव करेगा वो। ओके, जो शेकी है वो अपने पोजीशन से जाएगा, जाएगी, जो भी वट एवर इसे, एक्स तक, मतलब डोर तक। सो दैट मीन्स यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा? लिस्ट में अभी अभी यहाँ पे ऐड लिस्ट और डिलीट लिस्ट, ये दो मेथड्स यहाँ पे उन्होंने उसका यहाँ पे जिक्र किया। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, कि ये जो है एक्चुअली व्हाट विल दिस डू? दिस विल टेक द शेकी टू द नेक्स्ट पोजीशन। दैट मीन्स शेकी अभी अपनी पोजीशन पे थी, वो मूव करेगी एक्स टू, मतलब अपनी पोजीशन जो है वो एस है उसका, एंड एक्स लोअर एक्स तक वो मूव करने वाली है। दैट्स उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐड लिस्ट, मतलब कि उसके लिस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, जो उसका नेक्स्ट एक्शन है। तो उसका एक्शन क्या है कि आपको उसको एक्स तक जाना है, ठीक है? अभी याद रखना, हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्यू पढ़ा था हमने वहाँ पे। हमने क्यू में कैसे, क्यू मतलब क्यू वाला क्यू नहीं, वाई वाला क्यू नहीं। ओके, जो हमने स्टैक एंड क्यू पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर से, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो जो नोड हम लोग कवर करते थे, ट्री का याद है, हमने ट्री का बारे में देखा था। ट्री जो हम लोग उसको ट्रैवर्स करते थे ट्री को विद द हेल्प ऑफ क्यू एंड ऑल, स्टैक एंड क्यू। तो हम लोग जब ट्रैवर्स करते थे, जो जो नोड हमने कवर कर दिया रहता था उसको हम डिलीट करते जाते थे, राइट? क्यों? क्योंकि हम वापस से उस पाथ पे नहीं आना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते। हम लोग को अपना गोल स्टेट अगर फाइंड करना है, हमें अपना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो फॉर दैट हम लोग को वापस से उस नोड पे ना आना पड़े, इसलिए हम उसको डिलीट कर देते थे। ओके, एंड सारे नोड्स कवर करने होते थे हम लोग को, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐड और डिलीट होगा कुछ ना कुछ, अगर कुछ डिलीट हो रहा है तो कुछ ऐड होगा। मीन्स ऐड क्या होगा? जो कंडीशन नहीं है, और डिलीट क्या होगा? जो पुरानी कंडीशन। अगर मैंने बोला कि मेरे प्लेट में एप्पल्स था बट मैंने अभी वो खा लिया, तो प्री कंडीशन क्या थी कि एप्पल था
बट अभी एप्पल, अभी प्लेट खाली है, मैंने एप्पल खा लिया है, मतलब अभी जो एप्पल था वो कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ कि एप्पल नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एप्पल जो था वो फॉल्स हो चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट? मेरे प्लेट में एप्पल था, मैंने खा लिया, तो मेरे प्लेट में एप्पल था, ये स्टेटमेंट जो था दैट द एप्पल वाज देयर इन माय प्लेट, दैट हैज बिकम फॉल्स नाउ। सेम एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ ट्रैवलिंग वाला, अगर मुझे यहाँ से जाना है मुंबई सीएसटी, ठीक है, तो अगर सपोज मैं दीवा से ठाणे जा रहा हूँ, तो ठाणे स्टेशन पे अगर हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं दीवा स्टेशन पे नहीं हूँ। इफ आई एम टेलिंग दैट आई एम एट ठाणे, दैट मीन्स आई एम नॉट एट दीवा, बट मैं पहले दीवा पे था, बट वो अभी कंडीशन false हो चुकी है, because now I am at Thane, and when I will reach to the Mumbai CST, that time the Thane wala situation will also again, that situation will also become false. That means अगर मैं बोल रहा हूँ at CS, that means I am not at Thane, and also of course I am not at Diva also. एक टाइम पे एक ही जगह रह सकता हूँ ना मैं, of course I am not a कि एक साथ हर जगह रहूंगा। सो दैट्स व्हाई हियर व्हाट वी, तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हमने कवर कर दिया, मैंने दीवा कवर कर दिया, ठाणे पास कर दिया, तो ये सब हम डिलीट करते जाएंगे, बिकॉज दीज आर द प्री कंडीशन। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट एक्शन क्या है उसका, गो थ्रू डोर्स। पहला तो भाई शेकी अपने प्लेस से मूव करेगी डोर की तरफ, अभी उसको नेक्स्ट रूम में जाना है, तो डोर को पास करना पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू द डोर, दैट टाइम शेकी विल गो थ्रू द डोर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर। ओके, तो गो थ्रू डोर, तो इसको रीड कैसे करेंगे सेक्शन की होगा, एज आई टोल्ड यू अगेन, पहला पैरामीटर रीड करने का, फंक्शन रीड करो, एंड देन सेकंड पैरामीटर। सो शेकी, दैट इज एस, शेकी गो गोज थ्रू डोर dx, और ये से x, मतलब शेकी डोर x से पास होगी, थ्रू द डोर x। ओके, प्री कंडीशंस के लिए क्या क्या है कि उसके लिए प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर वो एक डोर से जा रही है फ्रॉम दिस रूम टू दैट रूम, दैट मीन्स ये रूम कनेक्ट कर रहा है दूसरे रूम को, जो डोर है वो कनेक्ट कर रहा है एक रूम को दूसरे रूम को, दैट्स वी हैव रिटन कनेक्ट dx कॉमा आर के कॉमा आर एम। तो इसको रीड कैसे करेंगे, डोर एक्स कनेक्ट रूम के टू रूम एम। ओके, एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर प्री कंडीशन, नेक्स्ट टू एस कॉमा डी एक्स, दैट मीन्स शेकी इज नेक्स्ट टू डोर एक्स, मतलब अभी नेक्स्ट टू डोर एक्स, मतलब कि शेकी अभी डोर एक्स के आगे आ गई, नेक्स्ट पे आ गई, मतलब डोर एक्स उसने पास किया, तो उसके लिए नेक्स्ट टू मतलब कि बाजू में है डोर एक्स के, राइट, तभी तो वो उसको पास कर पाएगी। देन एंड स्टेटस डीएक्स कॉमा ओपन, ऑफ कोर्स अगर वो डोर से पास हो रही है तो उसके लिए प्री कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि डोर खुला होना चाहिए, ऑफ कोर्स बंद दरवाजा थोड़ी खुल जा पाएगा, आत्मा नहीं है वो, कोई सोल नहीं है, it is a robot, okay, it is not a human being also, but it is not a soul, okay, it is a robot। so उसका मतलब है या उसके लिए प्री कंडीशन और क्या क्या होनी चाहिए, अगर उसको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है विद द हेल्प ऑफ डोर, तो डोर हैज टू बी ओपन, so that's why status of the dx is open, that's यहाँ पे हम उसको रीड कैसे करेंगे, डोर एक्स, डोर एक्स स्टेटस इज ओपन एंड शेकी इज इन रूम आर के, बट और ऑफ कोर्स ये भी प्री कंडीशन है कि अभी भी वो रूम आर के में खड़ी है, के में ही उसको एम में जाना है, बट अभी तक से वहीं पर है, ये सब प्री कंडीशन है। वो पास जब वो डोर से जब गुजर जाएगी, डोर से निकलेगी, तब उसका स्टेटस और उसका रूम जो है चेंज हो जाएगा, फिर वो रूम एम में पहुंच जाएगा। तो ये सब प्री कंडीशन है, तो इफेक्ट क्या होगा इसका, अगेन एड लिस्ट एंड डिलीट लिस्ट दो चीज आएंगी, मैंने बताया। तो एड लिस्ट मैंने क्या बताया, डिलीट लिस्ट में क्या होती है, जो चीज हमने ऑलरेडी कवर कर दी, जैसे मैंने बताया अगर मैं दीवा से थाने पहुंच चुका, थाने से ज्यादा पहुंचा, तो ये सब रास्ते मैंने कवर कर दिया, तो आई विल डिलीट दिस थिंग, मतलब अभी ये सब मेरे लिए फॉल्स होता जाएगा, जो यहाँ पे मैं हूँ अभी वो मेरे लिए ट्रू होगा कंडीशन। ओके, तो एड लिस्ट में क्या होगा, अभी क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, अगर वो डोर से पास होती है तो वो रूम एम में पहुंच जाएगी, ये इफेक्ट होगा, सिंपल। दैट्स व्हाई यहाँ पे इफेक्ट क्या है, तो एड लिस्ट मतलब लिस्ट में क्या नया ऐड होगा यहाँ पे, इन रूम एस कॉमा आर एम, दैट मीन्स शेकी इज इन रूम एम, ये ऐड होगा, मतलब अभी नया इफेक्ट ऐड हुआ है। डिलीट क्या होगा, जो प्री कंडीशन थी, पुरानी कंडीशन, मतलब अभी वो रूम के में नहीं है, अगर वो रूम एम में है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया था
कि अगर मैं थाने स्टेशन पे हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट एट रीवा। तो सिमिलरली अगर मैं रूम एम में आ गया हूँ, मेरा इफेक्ट क्या है, शेखी रूम एम में पहुंच जाए। तो मतलब अभी शेखी रूम एम में पहुंच गई, इसका मतलब अब वो रूम के में नहीं है। दैट्स व्हाई हम उसको डिलीट कर देंगे इन रूम एस कॉमा आर के वाली कंडीशन, ठीक है। As we are getting, this is very important, and that time only if you will understand these action schema, then only you will able to frame the algorithm, or you can say action schema for other problems also. सिंपल एग्जांपल ऑफ स्टेट स्टाइल प्लानिंग, गोल स्टेट। यहाँ पे अभी अगेन एक एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अगेन स्टेट्स का, ठीक है। अभी गोल स्टेट मेरा है, सपोज अभी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लिया, शेकी वाला तो हमने अभी कर लिया, शेकी वाला भी हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने लिया है जो कि है टेबल का। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल क्या लिया, एक टेबल, दो टेबल है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे ए और बी जो है दोनों का टॉप जो है खाली है, ओके। हमें ए को बी के ऊपर चढ़ाना है, ये हमारा गोल है यहाँ, सिंपल, और कुछ नहीं करना, राइट। अभी ऐसे तुम डायग्राम देख सकते हो, दिस कैन बी द डायग्राम एंड दिस इज द गोल स्टेट। गोल स्टेट मतलब हमें इसमें पहुंचना है, यहाँ पे है हम, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, बट हमें ये लाना है, मतलब ए और बी ये जो है दोनों, पहली चीज तो ये टेबल है, ठीक है, और उस पे ये कुछ भी बोल सकते हो, उसको बॉक्स बोलो या फिर कुछ भी बोलो। ए और बी दो चीजें हैं यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट समझ लो। तो दोनों का टॉप खाली है, मतलब ए और बी के ऊपर कुछ नहीं, बट हमारा, हमें करना क्या है, बी के ऊपर ए को रखना है, दैट इज अवर गोल। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने लिखा है गोल स्टेट क्या है हमारा, ए इज ऑन बी, मतलब जब ए इज ऑन बी हो जाएगा हमारा, ये कंडीशन आ जाएगी, तब हमारा गोल स्टेट अचीव हो जाएगा। तो स्टार्ट स्टेट क्या है कि जो ए जो है वो टेबल पे, ये टेबल है, ए टेबल पे, बी टेबल पे, दोनों टेबल पे, और दोनों का टॉप एम्प्टी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑन ए कॉमा टेबल। अब उसको रीड कैसे करेंगे, ए पहला पैरामीटर, फिर फंक्शन नेम, देन सेकंड पैरामीटर। सो ए इज ऑन टेबल, एज यू कैन सी इन डायग्राम, ए किस पे है, टेबल पे, यहाँ पे देखो, ए इज ऑन टेबल। देन सेकंड क्या है, बी इज ऑन टेबल, दोनों टेबल पे, एंड दोनों का टॉप जो है एम्प्टी है, ऐसा एम्प्टी टॉप ए, दैट मींस द ए हैज एम्प्टी टॉप, ऐसा हम उसको रीड करेंगे, ए हैज एम्प्टी टॉप, बी हैज एम्प्टी टॉप, दोनों का टॉप एम्प्टी, हमें टॉप मतलब ऊपर का पार्ट। देन गोल स्टेट हमें क्या होगा, गोल स्टेट क्या चाहिए हमें कि बी के ऊपर एक को चढ़ा देना है, ये गोल स्टेट है हमारा, ओके। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, तो यहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्शन, ऑपरेटर से एक्शन क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, मूवमेंट, सिंपल उठा के डाल दो उसके ऊपर। सो मूव एक्स कॉमा वाई, अभी यहाँ पे उन्होंने बताया एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स ए को बी पे डालना है, ये हमारा मूवमेंट होगा, ओके। तो यहाँ पे पहला प्री कंडीशन क्या है, एक्स टेबल पे है और वाई का टॉप एम्प्टी है। अभी यहाँ पे एक्स और वाई को छोड़ो, यहाँ पे ए और बी ही लो, ठीक है। ए टेबल पे है, ए ले लो, मतलब एज्यूम करो एक्स इज ए एंड वाई इज बी। तो एक्स प्री कंडीशन क्या है, जो हमारा ए है उसको हमें बी पे डालना, राइट। तो अभी बी कहाँ, अभी ए कहाँ पे, टेबल पे, ये हमारा प्री कंडीशन है। दूसरा कि जो बी है, अगर बी का टॉप एम्प्टी है तभी हम उसके ऊपर रख सकते हैं ए, खाली नहीं है तो हम नहीं रख सकते। ऑफकोर्स अगर किसी फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपके ग्लास में जगह है तो ही आप पानी डाल सकते हो, अगर जगह नहीं तो आप पानी नहीं डाल सकते हो, डाल सकते हो आप पानी ऑफकोर्स, बट उसका फायदा नहीं है, वो ओवरफ्लो होगा, इट हैज नॉट एनी सेंस, इट इज नॉट हैविंग एनी सेंस। सो अगर आपका बी खाली रहेगा, प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर मुझे बी, अगर सपोज कोई टेबल पे आपको कोई सामान रखना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो टेबल खाली होना चाहिए, तभी आप रख पाओगे ना उसको कुछ। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्री कंडीशन क्या है कि बी हैज, दैट मींस वाई हैज एम्प्टी टॉप एंड ए टेबल के ऊपर, ठीक है। तो एड लिस्ट में क्या आएगा, वही कि जो हम ए को बी पे चढ़ा देंगे, ए इज ऑन बी, एक्स और वाई को ए और बी एक्सक्लूड करो। डिलीट क्या हो जाएगा, ये कि अभी डिलीट क्या होगा कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ए, बी खाली था पहले, बट अभी बी के ऊपर ए रख दिया है, दैट मीन्स अब बी खाली नहीं है, तो जो बी एम्प्टी टॉप था, जो बी खाली था, वो वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट्स हम डिलीट कर देंगे उसको, डिलीट एम्प्टी टॉप है। और ये भी कंडीशन फॉल्स है, अगर मैंने बोल दिया कि ए अगर बी पे है, तो मतलब अभी ए टेबल पे नहीं है, अभी ए बी के टॉप पे आ गया, तो अभी नाउ ए इज ऑन टेबल, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। Challenges of AI and planning, these are the challenges, okay, which you can read it, okay. Planning with the state space, तो अभी यहाँ पे हम दो चीज सीखने वाले हैं, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन के बारे में।
प्लानिंग एल्गोरिदम उसको बोलते हैं। जैसे हमने बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम हमने पढ़े, लॉजिकल एजेंट के एल्गोरिदम हमने पढ़े, वैसे प्लानिंग एल्गोरिदम हमें पढ़ने वाले हैं। They are basically two algorithms which are used for planning. Okay, forward state space search and backward state space search. Okay, now forward and backward दोनों में क्या difference that we will tell that I will tell you. First of all, just try to focus on this. Forward state space search and backward state space search. So अभी इसको हम प्रोग्रेशन और रिग्रेशन में बोलते हैं। नाउ यू माइट हैव heard this word before also, right? Progression, I hope you have heard. Regression of line वगैरह हमने पढ़ा, right? But this is something different, okay? That I'll explain you. इसको हम बस यहाँ पे याद रखो, MCQs में they can ask you in examination or where you can be applying. Okay, वहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है that अगर मालूम पूछा है कि प्रोग्रेशन और you can say forward state space search is also known as stash, so it is also known as progression. सिंपल अगर फॉरवर्ड नाम आया तो प्रोग्रेस आएगा, बैकवर्ड आया तो रिग्रेट आएगा, that's it. ठीक है, तो फंक्शन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे फंक्शन कैसे, हम प्रोग्रेशन का फंक्शन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं पहले वो देख लो। इनिशियल स्टेट लिखते हैं पहले, तो जो भी प्लानिंग का प्रॉब्लम है, सपोज मैंने बताया शेकी वाला एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, अभी टेबल वाला प्रॉब्लम डिस्कस किया, देन रियल लाइफ में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, राइट? तो उसका इनिशियल स्टेट लिखेंगे। अगर मान लो मुझे यहाँ CST जाना है तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी जाने के लिए, मुझे मनाली जाना है, आई हैव टू प्लान फॉर इट। सो मेरा इनिशियल स्टेट पहले डिफाइन करूंगा दैट मैं घर पे बैठा हूँ अभी, मुझे जाना है लेकिन मनाली, so I have first my initial state I have to declare that I am at home. Then actions, क्या मुझे एक्शन लेने पड़ेंगे, I have to take the train, I have to book the tickets, क्या I have to make the bookings, everything I have to do. Goals test, गोल को टेस्ट करना पड़ेगा हमें कि हम जो whether the state satisfy the goal of the planning or not. क्योंकि जो भी स्टेट हम लोग कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, क्या वो हमारा सेट गोल उससे अचीव हो पाएगा या नहीं। मुझे जाना है मनाली बट मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ दूसरी, तो will I means क्या बोलते हैं रीच टू दैट पर्टिकुलर गोल। देन स्टेप कॉस्ट, ऑफ कोर्स मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरा स्टेप कॉस्ट ऐसा नहीं कि अगर मुझे जाना है मुंबई से तो कोई भी रास्ता पकड़ लो लंबा चौड़ा, नो आई हैव टू सी टू माई कॉस्ट ऑल्सो कि मेरा कम से कम खर्चा हो एंड ज़्यादा से मेरा गोल कम से कम स्टेप्स में मेरा जो गोल है अचीव हो जाए। ऐसा हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जब हम लोग कोई भी चीज़ गोल पे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू you know get, or you can try to achieve a goal, okay, that time we try maximum with the minimum, or you can say जितना कम हो सकता है उतने पास में हम उस तक पहुंच जाए, okay? We don't need to waste our energy। तो अगर हम कहीं जाते तो भी हम यही चीज सोचते हैं कि शॉर्टकट से हम पहुंच जाए, ज्यादा अपनी एनर्जी अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। अभी प्रोग्रेशन होता क्या है, प्लान इज अ सीक्वेंस ऑफ दिस ऑपरेटर। अभी प्रोग्रेशन और रिग्रेशन में मेजर डिफरेंस आई विल टेल यू, ओके। सो just a second, okay। so progression and regression here basically जो है यहाँ पे difference I will tell you। first I will explain progression then regression, then the difference between both। so plan is sequence of state operator from initial state search forward by selecting the operator, post predictions can be unified with the literals in the state. New state includes positive literals of effect, the negative literals of effect are deleted. Search forward and util goal unifies with the resulting state. This is state search research, space search using strips operators। Now अभी प्रोग्रेशन में क्या होता है, इनिशियल स्टेट और सर्च फॉरवर्ड जो होता है, जो हम सर्चिंग कर रहे हैं, ओके, तो उसमें प्री कंडीशन यूनिफाइड होती है। दैट मीन्स अभी पॉजिटिव और नेगेटिव लिटरल्स क्या होता है, अभी अगर मैंने ऐसा बताया कि जो चीज हमने कवर कर दिया ऑलरेडी, वो हम लोग अपने प्री कंडीशन जो भी है हमारे वो हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट लिस्ट कर देते हैं। दैट मीन्स वो नेगेटिव लिटरल होगा। दैट मीन्स अगर मैंने बोला कि आई वॉज ईटिंग एप्पल और एप्पल वॉज इन प्लेट, बट अभी एप्पल नहीं है, तो मतलब नेगेट हो गया एप्पल। दैट मीन्स एप्पल वॉज इन एप्पल, सपोज मैंने बोला प्ले एप्पल इज इन द प्लेट, ठीक है, बट अभी मैंने खा लिया है तो अभी प्लेट में एप्पल नहीं है, तो मैं नेगेट कर दूंगा उस स्टेटमेंट को कि एप्पल इज इन प्लेट। दैट मीन्स एप्पल इज नॉट इन द प्लेट, ओके। तो वैसे यहाँ पे लिटरल्स जो होते हैं वही नेगेटिव लिटरल्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लिटरल्स मतलब जिसमें नेगेशन नहीं आता है साइन, ओके, जिसमें हैज वगैरह, हैज नॉट ऐसा नहीं बोल रहे हम, ऐसा वो मैंने बोला टेबल हैज एम्प्टी टॉप, ओके। अभी मैंने टेबल हैज एम्प्टी टॉप
उसको भर दिया है मैंने किसी चीज से, तो नाउ नेगेशन ऑफ एंड टेबल हैज एम्प्टी टॉप आएगा, दैट मींस टेबल हैज नॉट एम्प्टी टॉप, दैट्स उसी के हमें उन्होंने बात की है, पॉजिटिव लिटरल एंड नेगेटिव लिटरल। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज यू हैव टू कीप इट इन माइंड, मेजर डिफरेंस। हाँ ठीक है, प्रोग्रेशन और एक और चीज प्रोग्रेशन में क्या होती है कि ईच स्टेप जो हम लेते हैं, ओके, ईच स्टेप, यहाँ पे फॉरवर्ड इसको इसलिए क्यों बोलते हैं क्योंकि हम लोग अगलस्तर की ओर बढ़ रहे हैं, अगलस्तर इन द सेंस कि हमारा ईच स्टेप विल टेक यू टू द नियर टू द गोल स्टेट, मतलब हमारा हर एक स्टेप जो होगा वो आपकी गोल स्टेट के करीब लेके जाएगा, दैट्स इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन इसलिए बिकॉज हर एक स्टेप में आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसलिए इसको फॉरवर्ड भी बोलते हैं, सर्च फॉरवर्ड, क्योंकि आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अगर मान लो मैंने बोला कि अगर मुझे मुंबई से एसटी जाना है, सपोज मैंने करेक्ट रूट पकड़ा, मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी, दीवा से थाने गया, फिर थाने से घाटकोपर गया, तो दैट मीन्स मेरा एक हर एक स्टेप जो है मेरा, दीवा से थाने एक स्टेप, थाने से घाटकोपर दूसरा स्टेप, घाटकोपर दादर तीसरा स्टेप, हर एक स्टेप में मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम कमिंग मोर क्लोजर टू माई गोल। मेरा गोल क्या है, रीच टू द मुंबई सीएसटी स्टेशन। तो जितने स्टेप्स मैं बढ़ रहा ले रहा हूँ आगे, उतने मैं गोल के और करीब आ रहा हूँ, नजदीक आ रहा हूँ, तो प्रोग्रेशन में ईच स्टेप विल टेक यू क्लोजर टू द गोल स्टेट। ओके, ये होता है प्रोग्रेशन, इसके लिए इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं, प्रोग्रेस होता है, आप फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हो। अभी रिग्रेशन की बात करते हैं। अ प्लान इज अ सीक्वेंस ऑफ these operator. Goal set must unify with at least one of the following letters in the operator effect. Its precondition must hold in the previous situation, and those become sub goals which might be satisfied by the initial conditions. Perform backward chaining from goal. Again, this is just phasers using. Okay. Now, रिग्रेशन में कैसा होता है, रिग्रेशन में हर एक स्टेप जरूरी नहीं कि आपको गोल स्टेट के करीब ही लेके जाए। ओके, रिग्रेशन में कैसा होता है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो एक सब गोल होता है। ओके, मतलब मुझे मुंबई सीएसटी जाना है, मेरा गोल स्टेट क्या है, मुंबई सीएसटी में पहुंचना। ओके, अभी उसके बीच में मैं रीवा से थाने जा रहा हूँ, थाने से घाटकोपर जा रहा हूँ, घाटकोपर से दादर जा रहा हूँ, ये मेरे डिफरेंट स्टेप्स है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेप्स है ना, मेरा यहाँ से थाने, वो एक गोल माना जाता है, छोटा गोल, सब गोल जिसको हम बोलते हैं, मतलब हमारा मेन गोल है सीएसटी पहुंचना। बट रिग्रेशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से थाने पहुंच गया, मतलब मैंने एक सब गोल मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, मतलब सब गोल पास कर दिया, जैसे सब गोल अचीव कर लिया मैंने। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हर एक स्टेप क्या होता है, सब गोल होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पॉइंट लिखा है ना, इट्स प्री कंडीशन वाज होल्ड इन प्रीवियस कंडीशन, दिस बिकम सब गोल्स, दैट मींस जो भी मेरी प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन क्या है, आई वाज एट दीवा बट नाउ आई एम एट थाने, तो मेरा दीवा जो मैं था वो मेरी प्री कंडीशन हो गई, तो वो एक मेरा सब गोल बन जाएगा जो कि मैंने अचीव ऑलरेडी कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट गोल, दैट मीन्स वो भी एक छोटा सा मेरा गोल था। अगर मैं किसी चीज, अगर सपोज मेरा एग्जाम है, ओके, एग्जाम है मेरा, मेरे 5 सब्जेक्ट है, मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो हर एक सब्जेक्ट का मेरा कंप्लीट होना एक तरह से मेरे लिए एक सब गोल है। मेरा गोल क्या है, मेन गोल मेरा ये है कि मुझे सारे सब्जेक्ट का पढ़ना है एग्जाम के लिए। जिस दिन मेरा 5 सब्जेक्ट पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन मेरा पूरा गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन उसी को मैंने डिवाइड किया, अगर मान लो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरा एक सब गोल कंप्लीट हुआ, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो 2 सब गोल कंप्लीट हुआ। तो मतलब यहाँ पे हर एक उन्होंने स्टेप को रीजन से और हर एक रीजन से प्री कंडीशन जो हम ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं उसको सब गोल बोला है रिग्रेशन में। हाँ? और प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेशन में आप हर एक स्टेप लो आपको वो गोल के नजदीक लेके जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, ठीक है, so this is what I was trying to explain you. Okay, heuristic state space search, how to find an admissible heuristic estimate distance from a state to a goal. Look at the effects of the action at the goals and guess how many actions are needed. Problem hard. These problems are goal independent assumption. The cost of having consideration of sub goal is approximately the sum of the cost of solving each sub goal independently. Now, cost of solving a conjunction of sub goals is
approximated by the sum of cost of solving each sub goal independently। मतलब हर एक सब गोल को अचीव करने के लिए, मतलब अगर जैसे मैंने बोला यहाँ से थाने जाने का जितना पैसा लगा, एक सब गोल हो गया, फिर थाने से घाटकोपर जाने का एक दूसरा पैसा लगेगा, तो उन सब को टोटल करके जो भी हमारा आता है, ओके, तो दैट इज नथिंग बट, मतलब वही हमारा एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सब गोल इंडिपेंडेंस है। ओके, then relaxation problem can remove all the preconditions of the action, almost implies that the number of steps required to solve a condition of goals is the number of unsatisfied goals. There may be two actions, each of which deletes the goal literal achieved by other, or some action may achieve multiple goals. So हो सकता है कि मेरा कुछ एक्शन ऐसा हो जिसमें मेरा गोल अचीव ही ना हो रहा हो, कि हो सकता है मेरा सिंपल सा प्लानिंग मेरा है, प्लान अगर मैं करूँ मुंबई से इससे आना, सिंपल प्लानिंग है, यहाँ से मुझे दीवा स्टेशन पहुंचना, दीवा से थाने, थाने से घाटकोपर, घाटकोपर दादा, दादा से पीएसटी, सिंपल सपोज, ठीक है, ये मेरा प्लानिंग है। बट अगर मान लो अभी मैं हर एक स्टेप में यहाँ से दीवा गया, मैंने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, मैं पास में आ रहा हूँ गोल के, दीवा से थाने पहुंच गया और पास आ गया, एक और सब गोल अचीव किया। बट व्हाट अगर मैंने थाने से कहीं और ही चला गया, थाने से मैं चला गया नेहरू, उल्टा आ गया मैं हार्बर लाइन में, तो हो सकता है मैं और दूर चला जाऊँ अपने स्टेट से, राइट, इट इज क्वाइट पॉसिबल, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं फास्ट ट्रेन पकड़ लूँ, अभी ऑफकोर्स मैं तो फास्ट के टर्म्स में बता रहा हूँ, बट जस्ट एज्यूम करो कि फास्ट ट्रेन डायरेक्ट आपको थाने और डायरेक्ट आपको यहाँ पे उतारेगी, घाटकोपर नहीं, डायरेक्ट दादर। दैट मीन्स एक साथ दो दो गोल अचीव हो गए। तो ऐसा एक्शंस भी हो सकते हैं हमारे जिसके थ्रू एक से ज्यादा सब गोल अचीव हो सकते हैं, और ऐसे एक्शंस भी हो सकते हैं जिसके थ्रू एक भी गोल अचीव हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है आप नेहरू साइड चले जाए, उल्टा हार्बर लाइन में आ जाए। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। रिमूविंग नेगेटिव इफेक्ट्स मतलब डिलीट करना, ओके, वही जैसे मैंने बताया कि अगर जो चीज ऑलरेडी हमने कवर कर ली, प्री कंडीशन जो हो चुकी है, सेटिस्फाई अचीव हो चुकी है, दैट वी विल डिलीट। एक्सटेंशन एडीएल के बारे में उन्होंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बताया, एडीएल क्या है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्शन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है ये, ओके, एंड इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिटरल्स के बारे में होता है, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, पॉजिटिव लिटरल्स क्या होते हैं, नेगेटिव लिटरल्स क्या होते हैं। ओपन वर्ल्ड एजम्पशंस, अनमेंशन्ड लिटरल्स आर अननोन, इफेक्ट पी एंड नेगेशन क्यू मीन ऐड पी एंड नेगेट क्यू एंड डिलीट नेगेशन पी एंड क्यू। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मतलब भी, नेगेशन अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज का मतलब उसको डिलीट कर दो, और अगर हम उसको नेगेटिव लिटरल बोलते हैं, और अगर हम नेगेशन नहीं दे रहे किसी चीज को, पॉजिटिवली बोल रहे हो, तो मतलब उसको ऐड कर दो, ठीक है। Four quantified variables consumption. Okay, just wait. I'll just drink the water. Okay, and I'll just come back. Just I'll drink the water. Okay. Okay. So just I am back. Okay. So that is what we were talking about these things over here. Okay. तो जो मैंने ऑलरेडी बताई यहाँ पे, इफेक्ट्स जो है, कंडीशन इफेक्ट्स जो भी आएंगे उसके लिए इक्वालिटी प्रेडिक्ट प्रेडिकेट सॉरी टू टू वाई, so this which are important things that I am explaining. This is again one more example of air cargo transport जो मैंने यहाँ पे explain किया है, okay, very well, and this is again quite interesting example, okay. लोडिंग अनलोडिंग कार्गो का उन्होंने एग्जांपल दिया है, ओके। कार्गो एक तरह से यहाँ पे आपने सुना होगा पहले इसके बारे में, आई डोंट नो अबाउट इट। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट इसका होता है, इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है इस चीज का, ओके, कार्गो का, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट। तो उसका एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिया है, लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गो इनटू और ऑनटू ऑफ द प्लेन्स एंड फ्लाइंग इन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब कि जो कार्गो है, मतलब जो माल है ये कार्गो का, आपको एक दूसरा एग्जांपल होगा, आपको कार्गो का नहीं पता तो आप समझ लो,
कोई माल है, ओके, सामान है, ओके, उसको ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विद द हेल्प ऑफ प्लेन। तो उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है प्लानिंग में कि इसको कैसे करेंगे। तो फॉर दैट आल्सो प्लान इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक्शन क्या क्या होंगे, पहली चीज हम वो डिफाइन करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे एक्शन जो होगा वो ये होगा कि जो कार्गो है या जो सामान है वो लोड होगा, फिर अनलोड होगा एंड फ्लाई। तीन एक्शन यहाँ पे होंगे फिक्स, ओके। ऑफकोर्स लोड करना है मतलब कि पहले तो लोड होगा, मतलब कि कोई जो भी सामान है कार्गो है उसको रखा जाएगा प्लेन के अंदर, फिर लोड किया जाएगा, ओके। देन फ्लाई हो जाएगी प्लेन, दैट इज सेकेंड एक्शन, ओके, नेक्स्ट प्लेस पे जाने के लिए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट प्लेस पे पहुंच जाएंगे तो वहां से वापस निकालना ही पड़ेगा सामान और कार्गो, तो अनलोड होगा। So these three actions will take place here for sure, right? ये तीन एक्शन होने के वाले हैं यहाँ पे। Now states यहाँ पे क्या होगा, पहले तो कार्गो जो है, पहली चीज तो यहाँ पे कार्गो जो है, यहाँ पे दो स्टेट्स उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए। कार्गो इज इनसाइड द प्लेन। प्लेन को उन्होंने यहाँ पे पी लिया है, कार्गो को उन्होंने यहाँ पे पी लिया है। तो कार्गो सी इज इनसाइड द प्लेन। तो दैट मीन्स कार्गो अगर प्लेन के अंदर होगा तभी वो डिलीवर होगा या फिर तभी वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा दूसरी तरफ। एंड दूसरा क्या है, एट एक्स कॉमा ए। ऑब्जेक्ट एक्स मीन्स प्लेन उन्होंने लिया कार्गो एट एयरपोर्ट। और दूसरा स्टेट क्या होगा कि जो हमारा कार्गो है या फिर जो भी हमारा प्लेन है वो कहाँ पे है, एयरपोर्ट के ऊपर है। अभी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज जस्ट एज्यूम करो कि अपना मुंबई छत्रपति शिवाजी वाला टर्मिनस टर्मिनल ये एक एयरपोर्ट ले लो, ठीक है, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का ले लो। ये दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, मतलब ये दो एयरपोर्ट का हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे यहाँ से, ओके, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करनी है कुछ सामान, दो कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन तो, पहली चीज तो मेरा जो सामान है वो अपने आप तो प्लेन में नहीं बैठ जाएगा, पहले तो भाई प्लेन में जाके लोड करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो पहले जमीन पे होगा ना, दैट मीन्स पहले वो एयरपोर्ट लाया जाएगा। तो हम एयरपोर्ट से स्टार्ट करें। सपोज मेरा सामान मेरा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स एज्यूम करो, मेरा बॉक्स उसमें सामान है। तो बॉक्स पहले एयरपोर्ट पे होगा, दैट्स यहाँ पे लिखा है। एंड एयर एंड ऑल्सो प्लेन इज ऑल्सो एट एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, राइट। मतलब प्लेन और बॉक्स दोनों अभी एयरपोर्ट पे है, पहली कंडीशन। एंड अभी ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं हुआ, डेली करना है ट्रांसपोर्ट, अभी तक करा नहीं है मैंने। अभी दोनों चीजें यहाँ पे बोला ऑब्जेक्ट एक्स एट एयरपोर्ट है। एक्स मतलब प्लेन एंड कार्गो, मतलब बॉक्स समझिए। तो मेरा बॉक्स अभी एयरपोर्ट पे है, अभी प्लेन में नहीं रखा गया है, और मेरा प्लेन भी अभी एयरपोर्ट पे ही है, ठीक है। एट, और एयरपोर्ट को उन्होंने क्या लिया, ए लिया है, मुंबई एयरपोर्ट। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, उसको हम लोड करेंगे। तो लोड करेंगे मतलब मेरा जो बॉक्स है दैट इज इनसाइड द प्लेन नाउ, दैट्स ओनली सेकंड कंडीशन कि माय कार्गो इनसाइड द प्लेन। तो यहाँ पे आइनाइट मतलब इनिशियल उन्होंने कंडीशन क्या लिखी है कि अभी यहाँ पे उन्होंने दो एयरपोर्ट की एग्जांपल, जैसे मैंने मुंबई और दिल्ली बताया इजी करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने एस एफ ओ एंड जे एफ के बताया, ठीक है। तो ये एग्जांपल उन्होंने थोड़ा सा अलग वे में लिया है दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन करना। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड। उन्होंने क्या बोला है कि कार्गो जो है यहाँ पे उन्होंने C1 लिया है कार्गो, एंड यहाँ पे उन्होंने प्लेन वन प्लेन टू लिए। सी दिस इज अबाउट जस्ट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल नाम क्या लिए उसको इतना मत जाओ आप लोग, कंफ्यूज मत हो, ओके। उन्होंने पहला कंडीशन क्या लिखता है कि कार्गो जो है वो एसएफओ एयरपोर्ट के ऊपर है, मतलब कि जो मेरा सामान है कार्गो वो एसएफओ पे है। फिर एंड ऑपरेट लगाया, मतलब ये भी कंडीशन टू है, ये भी टू है। और जो कार्गो है दूसरा जो है वो जेएफके एयरपोर्ट पे है। एट, जो प्लेन है वो एसएफओ पे है, P1 प्लेन, एंड दूसरा जो दूसरा प्लेन है P2 वो जेएफके पे है। एंड कार्गो C1 है यहाँ पे, और कार्गो C2 भी कार्गो है, P1 प्लेन है, P2 भी प्लेन है यहाँ पे। देन एयरपोर्ट जेएफके एयरपोर्ट है एंड एसएफओ एयरपोर्ट है। ये उन्होंने प्री कंडीशन और ये कैसे इनिशियल स्टेट उन्होंने डिफाइन कर दिए। गोल स्टेट क्या है यहाँ पे कि हम लोग को एसएफओ से जेएफके पहुंचना है विद प्लेन एंड कार्गो। दैट मीन्स हम लोग को हमारा जो जेएफके पे है वहाँ पे कार्गो पहुंचाना है। दैट मीन्स हमारा गोल स्टेट क्या है, दैट C1 इज एट जेएफके, दैट मीन्स हमारा कार्गो जेएफके पे है, ये हमारा गोल स्टेट होना चाहिए। एंड C2 इज एट एसएफओ, और जो उल्टा है मतलब कि हमें ये C1
SFO से JFK पहुंचाना है और C2 JFK से SFO पहुंचाना है, तो C2 होना चाहिए SFO के पास। मतलब यहाँ पे उन्होंने दो एयरपोर्ट लिए हैं, जैसे मैंने बताया मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई में भी एक बॉक्स है और एक प्लेन है, दिल्ली में भी एक बॉक्स है एक प्लेन है। तो जो मुंबई का बॉक्स है उन्होंने वहाँ पे P1 लिया है कार्गो, एंड मुंबई में जो प्लेन है वो P1 लिया है उन्होंने, और जो दिल्ली में है वो P2 लिया है उन्होंने प्लेन, और वहाँ पे जो बॉक्स है उन्होंने C2 लिया है। तो P1 को यहाँ से भेजना है दिल्ली, और C2 को दिल्ली से लेके आना है मुंबई। तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया। यहाँ पे एक्शन स्कीम उन्होंने लिखा है, पहले तो हमें लोड करना पड़ेगा कार्गो को, कहाँ पे, प्लेन में। कहाँ, वो प्लेन कहाँ पे, एयरपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हम उसको रीड कैसे करेंगे, पहला पैरामीटर, कार्गो इज लोडेड टू प्लेन एट एयर प्लेन एट द एयरपोर्ट। ओके, तो प्री कंडीशन क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बताया कि पहला प्री कंडीशन यहाँ पे क्या है कि कार्गो इज एट एरोप्लेन, सॉरी एयरपोर्ट, नॉट एरोप्लेन, एयरपोर्ट, और प्लेन भी एयरपोर्ट पे है। भाई ऑफकोर्स अगर हमें कार्गो लोड करना है अगर प्लेन के अंदर, तो उसके लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो एयरपोर्ट पे होना चाहिए पहले। अगर एयरपोर्ट पे ही नहीं है तो हम एयरप्लेन में कैसे डालेंगे। तो इट हैज टू बी ऑन एयरपोर्ट, एंड कार्गो सी है, प्लेन पी है, जो कि ऑलरेडी तब हमने डिफाइन किया। इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारा कार्गो के अंदर, सॉरी प्लेन के अंदर कार्गो आ जाएगा, दैट्स व्हाई इन सी कॉमा पी लिखा है। लेकिन नेगेट क्या होगा यहाँ पे कि अभी वो एयरपोर्ट पे नहीं है कार्गो, सी एट सी कॉमा ए मीन्स कार्गो इज नॉट एट C comma A. You can try to understand this. Okay, I think so. This is again going to take one more, but I want you to understand the things. Okay, I don't want you to just go like this. Okay, so this is the last problem which I am explaining you. I hope you will understand the rest of the problems. Okay, so that's why I am explaining you. ठीक है, that's why वो negate हो जाएगा. ठीक है, then action unload, अभी unload करना है यहाँ पे हम लोग को। so again अभी वहां से यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट क्या है, अनलोड मतलब बाहर निकालना है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कार्गो को प्लेन से बाहर निकालना जो कि एयरपोर्ट पे है। तो प्री कंडीशन क्या है कि अभी कार्गो प्लेन के अंदर है, दैट सी इज इन पी, एंड प्लेन का है, एयरपोर्ट पे, और कार्गो और प्लेन और एयरपोर्ट ये हमने लिखा है। अभी यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा कि अभी कार्गो एयरपोर्ट पे आ गया है, और नेगेट क्या होगा कि कार्गो प्लेन के अंदर था, दैट मीन्स सी कॉमा पी, दैट मीन्स कार्गो वाज इन प्लेन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन क्या है, फ्लाई, ऑफ कोर्स उड़ना भी चाहिए ना, प्लेन। तो प्लेन फ्रॉम टू मतलब दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली। तो प्री कंडीशन क्या है कि कार प्लेन जो है वो फ्रॉम जहाँ पे है वहां से होनी चाहिए, और प्लेन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट कहाँ पे जाना है वो होना चाहिए। यहाँ पे नेगेट क्या होगा कि जहाँ पे वो थी प्लेन मतलब मुंबई, वो नेगेट हो जाएगा, और इफेक्ट क्या है जो जहाँ पे उसको पहुंचना है वो आ जाए। ठीक है, एंड देन अगेन देयर इज मच मोर एग्जांपल which you all can go through. Okay, but since due to the lack of time I cannot explain these things. But one the most last thing I would like to explain you. Okay, these things you have to study all these things. Okay, partial order plan क्या होता है, total order plan क्या होता है, all this, and ये सब इतना डीप में कुछ इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हो सकती। ओके, यस, तो ये समरी पढ़ना है, और ये सब भी पढ़ना है, एक बार रीड करना, बट दैट इज नॉट इन डिटेल, इतना डिटेल में नहीं है। बट दिस इज जो मैंने अभी तक पढ़ा है अच्छे से, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे समरी अभी एक लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, जो कि मैं कराने वाला नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ये वाला मंकी एंड बनाना प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच यू ऑल कैन ट्राई। तो उसको एक्शन स्कीमा लिखना है, जैसे मैंने बताया, कार्गो वाला बताया, फिर शेकी वर्ड हमने वाला देखा था, शेकी वर्ड वाला, एंड फिर टेबल वाला देखा था, एंड देन डिफरेंट एग्जांपल्स वी हैव सीन। उसी तरह से इस प्रॉब्लम को भी वी हैव टू फॉर्मुलेट। ओके, so I want everyone to try this particular problem. Okay, so thank you so much everyone. So I'll just stop this. Okay, that's it.